I hope you are having a good day, CA finalists. Let's move ahead to the Test Your Knowledge section of the second chapter, Types of Duty. So, the first question reads: with reference to Section 9AA of the Customs Tariff Act 1975, state briefly the provisions of refund of anti dumping duty. सो कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 का सेक्शन 9AA हमें ये बोलता है कि अगर कोई भी इम्पोर्टर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये प्रूव कर देता है कि उसने कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी एक्सेस में पे की हुई है जितना उसको पे करने चाहिए था उसके मुकाबले, तो इन दैट केस ही इज़ एंटाइटल्ड टू रिफंड। लेकिन अगर उसने प्रोविजनल एंटी डंपिंग ड्यूटी पे की हुई है तो वो एंटाइटल्ड नहीं होगा रिफंड के लिए in this section. However, this is refundable in section 9A2 जो कि स्पेसिफिकली डील करता है प्रोविजनल एंटी डंपिंग ड्यूटी के रिफंड के बारे में। जो हमने एक्सेस एंटी डंपिंग ड्यूटी का रिफंड पे किया हुआ है, दिस इज़ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट जो कि दिया गया है एक केस लॉ के अंडर। ये जजमेंट पास किया गया था इन द केस ऑफ ऑटोमेटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन वर्सेस डेजिग्नेटेड अथॉरिटी इन द ईयर 2011 बाय सुप्रीम कोर्ट, published by Excise Law Tribunal in volume 263, page number 481. Let's read the answer. It says, according to the provisions of Section 9AA of the Customs Tariff Act 1975, when an importer proves to the satisfaction of central government that he has paid any anti-dumping duty imposed on any article in excess of the actual margin of dumping in relation to such article, he shall be entitled to refund of such excess duty. However, the importer will not be entitled for refund of provisional anti-dumping duty under Section 9AA, as the same is refundable under Section 9A2 of the said Act. Refund of excess anti-dumping duty paid is subject to the provisions of unjust enrichment as given in Automotive Tire Manufacturers Association versus Designated Authority, year 2011, volume 263, published by Excise Law Tribunal, page 481 by Supreme Court. Now, let's move ahead to the second question. With reference to Section 9A, subsection 1A of the Customs Tariff Act 1975, mention the ways that constitute circumvention of anti-dumping duty imposed on an article which may warrant action by the central government. So basically, इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी किस किस तरह से ट्रिगर हो सकती है। जैसे हमने पढ़ा था कि एंटी डंपिंग ड्यूटी ट्रिगर होने के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि डंपिंग हो रही है तो वो किस तरह से होती है। या तो हम हमारा डिस्क्रिप्शन, कंपोजिशन या आर्टिकल का नाम ही बदल दें सो दैट हमको ऐसे समझ में आए कि इस पर ड्यूटी लगती नहीं है और हम उसको प्रॉपर्ली डंप कर पाए, या फिर आर्टिकल हम इंपोर्ट कर रहे हैं असेंबल्ड अनअसेंबल्ड फॉर्म में या डिसअसेंबल्ड फॉर्म में, या फिर जो कंट्री जहाँ से उसका ओरिजिन हो रहा था या एक्सपोर्ट हो रहा था उसी कंट्री को बदल दे इन सम और दी अदर वे, या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन हो सकती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि यार इसके वजह से एंटी डंपिंग ड्यूटी इनइफेक्टिव हो सकती है। तो ऐसे केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट सर्कमवेंट कर लेगी एंटी डंपिंग ड्यूटी को एंड इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करके ड्यूटी लगा देगी। नाउ लेट्स रीड द आंसर. As per Section 9A, subsection 1A of the Customs Tariff Act 1975, following are the ways that would constitute circumvention, avoiding levy of duty by unscrupulous means of anti-dumping duty imposed on an article that may warrant action by the central government. Altering the description or name or composition of the article subject to such anti-dumping duty, import of such article in an unassembled or disassembled form, changing the country of its origin or export, or in any other manner whereby anti-dumping duty so imposed is rendered ineffective. In such cases, investigation can be carried out by the central government and then anti-dumping can be imposed on such articles. Simple. So now let's move to the next question. When shall the safeguard measures under Section 8B of the Customs Tariff Act 1975 be not imposed? Discuss briefly. क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कहाँ कहाँ हमें सेफगार्ड मेजर्स नहीं लगाना है। नहीं लगाना है, इससे हमें ध्यान में आना चाहिए कि हमें एग्जाम्शंस के बारे में बात करनी है। किस केस में हमको एग्जाम्शन मिला था वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। हमारे पास टोटल 3 एग्जाम्शंस थे कि हमने किसी आर्टिकल को इंपोर्ट किया है एक डेवलपिंग कंट्री से, तो इन दैट केस वहाँ से जो भी हमारे उस आर्टिकल के इंपोर्ट्स हो रहे हैं वो 3% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर एक से ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं तो इन दैट केस वहाँ पर जो एग्रीगेट इंपोर्ट्स है वो 9% एक्सीड नहीं करना चाहिए एंड पर कंट्री का कैप हमारे पास 3% का होगा।
एंड लास्टली जो थर्ड एग्जेप्शन था वो रिलेट करता था 100% ईओयू या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के यूनिट से। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस हमको सेटिस्फाई करनी होती थी। तो इन्होंने क्या बोला था हमको कि अगर हमने जो इंपोर्ट करवाया है वो स्पेसिफिकली इंपोर्ट नहीं करवाए तो इन दैट केस हमको मिल जाएगा, या फिर जो हमने आर्टिकल्स इंपोर्ट करे थे उन्हें एज सच हमने डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में क्लियर नहीं करवाया तो हमको मिल जाएगा, या फिर जो हमने आर्टिकल्स मंगवाए थे उनको हमने किसी गुड्स के मैन्युफैक्चर के लिए यूज़ किया और वो गुड्स हमने डीटीए में एज सच क्लियर नहीं करवाए हैं तो मिल जाएगा। तो इन दैट केस यहाँ पे हमको ईओयू या स्पेशल इकोनॉमिक जोन के केस में एग्जेम्पशन मिल जाता था। एंड जो गुड्स हमने क्लियर करवा दिए थे उनके केस में सेफगार्ड मेजर्स एप्लीकेबल होकर सेफगार्ड ड्यूटी लग जाती थी। सिंपल सा पॉइंट था। अब इसी को हमें देखना है कि इन्होंने आंसर में कैसे प्रेजेंट किया है। The safeguard measures under Section 8B of the Customs Tariff Act 1975 is not imposed on the import of the following types of articles. The first one, articles originating from a developing country so long as the share of imports of that article from that country does not exceed 3% of the total imports of that article into India. Second one, articles originating from more than one developing country so long as the aggregate of imports from developing countries each with less than 3% import share taken together does not exceed 9% of the total imports of that article into India. And the third one, articles imported by 100% EOU or units in a special economic zone unless it is specifically made applicable on them, or the article imported is either cleared as such into DTA or used in the manufacture of any goods that are cleared into DTA. In such cases, safeguard measures shall be applicable on that portion of the article so cleared or so used as was leviable when it was imported into India. Now, let's move ahead to the next question. What are the conditions required to be fulfilled by the importer to make the imported goods eligible for preferential rate of duty prescribed by the central government by notification under Section 25 of the Customs Act 1962? अगर किसी इम्पोर्टर को प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी का बेनिफिट उठाना है तो इन दैट केस उसको सबसे पहले क्लेम करना होगा स्पेसिफिकली कि उसे प्रेफरेंशियल रेट चाहिए। अब उसे प्रेफरेंशियल रेट चाहिए तो उसको ये भी क्लेम करना होगा कि प्रेफरेंशियल एरिया में उसके गुड्स प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर हुए हैं। प्रेफरेंशियल एरिया वो एरिया होगा जो कस्टम्स टैरिफ एक्ट के सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 के अंदर नोटिफाई किया गया होगा। अभी जो हमारे गुड्स है उनका ओरिजिन हमको डिटरमाइन करना है, तो उसके लिए हम लोग सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 के अंदर जो रूल्स बताए गए हैं उसके मुताबिक इसका ओरिजिन डिटरमाइन करेंगे। अब ये जो रूल्स थे ये हमें चैप्टर के अंदर इन्होंने नहीं दिए थे, बट बाय वे ऑफ क्वेश्चन इन्होंने हमें ये रूल्स यहाँ बताए हैं। सो ये बोलते हैं कि जब भी हम रूल्स के थ्रू ओरिजिन डिटरमाइन करने वाले हैं तो इन दैट केस अगर गुड्स मेरे मैन्युफैक्चर्ड नहीं है तो इन दैट केस वो गुड्स जो है वो प्रोड्यूस होने चाहिए या ग्रो होने चाहिए उस एरिया के अंदर। अगर वो गुड्स मेरे फुल्ली मैन्युफैक्चर्ड है तो इन दैट केस उस कंट्री के अंदर जो भी अनमैन्युफैक्चर्ड मटेरियल्स होंगे या फिर मटेरियल जो उस कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हुआ होगा उससे मेरा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कंप्लीट होना चाहिए। और अगर मेरे गुड्स पार्शियली मैन्युफैक्चर्ड है तो जो फाइनल प्रोसेस होगी ना उस प्रोडक्ट से रिलेटेड वो वहाँ पर उस कंट्री के अंदर होनी चाहिए। ओनली टू ऐड टू दिस इन्होंने ये भी बोला है कि स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर मटेरियल और लेबर पे उस कंट्री के अंदर होना चाहिए जो कि नोटिफाइड है। Let's read the answer. The government may, by notification under Section 25 of the Customs Act 1962, prescribe preferential rate of duty in respect of imports from certain preferential areas. The importer will have to fulfill the following conditions to make the imported goods eligible for preferential rate of duty. At the time of importation, he should make a specific claim for the preferential rate. He should also claim that the goods are produced or manufactured in such preferential area. The area should be notified under Section 4, Subsection 3 of the Customs Tariff Act 1975 to be a preferential area. The origin of the goods shall be determined in accordance with the rules made under Section 4, Subsection 2 of the Customs Tariff Act 1975. Determination of origin is important to allow concessional rate of customs duty. Generally, as per the rules, if the goods are unmanufactured, it should be grown or produced in that area.
If it is fully manufactured in that country, it should be manufactured from material produced or with unmanufactured materials from that country. If it is partially manufactured in that country, final process should be completed in that country and at least specified percentage of expenditure on material or labor should be in that country. Moving forward to question 5, write a note on emergency power to impose or enhance import duties under section 8A of the Customs Tariff Act 1975. So when we talk about emergency power to impose or enhance import duties, basic thing that should trigger our brains should be an amendment to the first schedule whereby हम लोग सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर इम्पोर्ट ड्यूटी इम्पोज कर सकते हैं या इंक्रीज़ कर सकते हैं जो ऑलरेडी फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दी गई है. इसके अलावा हम लोग कहीं चेंजेस नहीं कर सकते. एंड सेकेंडली, सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी सेटिस्फाइड टू इंक्रीज और इम्पोज इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन द स्पेसिफाइड गुड्स. Now let's read the answer. Section 8A of Customs Tariff Act 1975 provides that where the central government is satisfied that the basic customs duty leviable on any article should be increased and that circumstances exist which render it necessary to take immediate action, it may, by notification, amend the first schedule of the customs tariff to increase the import duty leviable on such article to such extent as it thinks necessary. Now let's move ahead to the next question, which seems to be numerical one. Determine the customs duty payable under the Customs Tariff Act 1975, including the safeguard duty of 30% under Section 8B of the said Act with the following details available on hand. Assessable value of sodium nitrite imported from a developing country from 26th October 2020 to 25th October 2021, both days inclusive, rupees 30 lakhs. So we have been given assessable value as per customs. Share of imports of sodium nitrite from the developing country against total imports of sodium nitrite to India is 4%. एक कंट्री से हमको 3% से ज़्यादा नहीं लेना है, तो यहाँ पे इन्होंने 3% से ज़्यादा ले लिया है, तो हमको यहाँ पे एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा. सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द सेफगार्ड ड्यूटी इन दिस रिस्पेक्ट. अब इन्होंने आगे क्या बोला है, दैट बेसिक कस्टम्स ड्यूटी इज़ 10%, इंटीग्रेटेड टैक्स इज़ 12%, सोशल वेलफेयर सरचार्ज इज़ 10%, and a note has been given to ignore GST compensation cess and agriculture infrastructure and development cess. सो यहाँ अगर हम बेसिक कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इन दैट केस सबसे पहले हमको एसेसिबल वैल्यू के ऊपर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी कैलकुलेट करनी होगी. लेट्स गेट ऑन आवर कैलकुलेटर. 30 lakhs into 10%, which will be equal to rupees 3 lakhs. Now moving ahead to calculate the safeguard duty. So safeguard duty is calculated at the rate of 30%. So 30% of 30 lakhs will be equal to 9 lakh rupees, and then we go to calculate the social welfare surcharge because social welfare surcharge would be added for the value that we have to calculate for the purpose of integrated tax at the rate of 10%. So in this case we are going to take 10% of 3 lakh only because सेफगार्ड ड्यूटी इज़ अ स्पेशल वन जो कि हम सोशल वेलफेयर सरचार्ज के अंदर नहीं लेते, ये हमने पढ़ा था स्पेसिफिकली. सो 3 लाख का 10% विल कम टू 30,000. नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर द पर्पज़ ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स. तो इसके लिए हम सारी फिगर्स ऐड कर देंगे. सो नाउ वी हैव 30 lakhs प्लस 3 lakh प्लस 9 lakh प्लस 30,000 विच इज़ इक्वल्स टू 42,30,000 एंड इंटीग्रेटेड टैक्स का रेट दिया हुआ है 12%. सो मल्टीप्लाइड बाई 12% टू गेट 5,07,600. जो हमारी टोटल कस्टम्स ड्यूटी पेबल होगी दैट विल बी द सम ऑफ द ड्यूटीज़ वी हैव पेड अलॉन्ग विथ इंटीग्रेटेड टैक्स. सो वी विल टेक 3 lakh प्लस 9 lakh प्लस 30,000 plus 5,07,600 which will be 17,37,600. Now let's see the answer. सो एज़ यू कैन सी जो अभी हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट की थी वही यहाँ पर आई है और हमारा फाइनल आंसर एग्जैक्ट मैच है. इसी तरह हमको पेपर के अंदर इसे सॉल्व करके आना है. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन 9 डायरेक्टली. 7 and 8 will be discussed in the end. Chain Top Industries has challenged the imposition of anti-dumping duty retrospectively on the grounds that it is unconstitutional. Explain
whether it would succeed in its contention. So यहाँ पर retrospective effect of anti dumping duty की बात हो रही है. तो हमारे पास कुछ ऐसे कंडीशंस आते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट चाहे तो रेट्रोस्पेक्टिवली एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज कर सकती है फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज. तो ऐसे कौन से कंडीशंस है कि जहाँ पर हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे सकते हैं? तो स्पेसिफिकली जब उस पर्टिकुलर कंट्री से हमारे पास एक हिस्ट्री है डंपिंग की, एंड उस डंपिंग की वजह से जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है या इम्पोर्टर है उसको काफ़ी इंजरी हो रही है. इन दैट केस रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट कैन बी गिवन, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कैन बी गिवन. एंड सेकेंडली जो रिसेंट पास्ट है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि मैसिव डंपिंग हो रही है किसी आर्टिकल की एक रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, जिसके वजह से जो इफ़ेक्ट है ना वो पास्ट से हमारे पास नज़र आ रहा है, या फिर हम ऐसे देख सकते हैं कि आगे चल के हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है. तो ऐसे केस में हम रेट्रोस्पेक्टिवली एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं. ओके. So, Section 9A3 of the Customs Tariff Act 1975 provides that the anti-dumping duty can be imposed with retrospective effect, provided the government is of the opinion that there is a history of dumping which caused injury, or that the importer was or should have been aware that the exporter practices dumping and that such dumping would cause injury, and the injury is caused by massive dumping of an article imported in a relatively short time, which is in the light of timing and volume of the imported article dumped and other circumstances is likely to seriously undermine the remedial effect of the anti-dumping duty liable to be levied. The duty can be levied retrospectively by issuing a notification but not beyond 90 days from the date of the notification. Thus, chain top industries would succeed in its contention only if all of the above conditions are not satisfied. मतलब ही अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो इन दैट केस चेन टॉप इंडस्ट्रीज अपने कंटेंशन में सक्सीड नहीं कर पाएगी. मूविंग अहेड टू क्वेश्चन 10. Determine the total duties payable under Customs Act if Mr. Rao imported rubber from Malaysia at landed price exclusive of duties of rupees 25 lakhs. It has been notified by the central government that the share of imports of rubber from the developing country against total imports to India exceeds 5%. Safeguard duty notified on this product is 30%, IGST under section 3 subsection 7 is 12% and BCD is 10%. Ignore agriculture infrastructure and development cess. So यहाँ पर हमको सेफगार्ड ड्यूटी भी कैलकुलेट करनी है, BCD कैलकुलेट करना है और IGST भी कैलकुलेट करना है जैसे हमने पहले किया था. तो अभी सबसे पहले हम लोग हमारा जो लैंडेड प्राइस है वो ले लेंगे, दैट इज़ 25 लाख्स. इसका हमको सबसे पहले BCD कैलकुलेट करना होगा एट द रेट ऑफ 10%, जो कि आएगा 2,50,000. फर्दर 25 लाख्स का 30% अगर हम करेंगे तो वी विल गेट द सेफगार्ड ड्यूटी ऑफ 7,50,000. अभी BCD के ऊपर ही सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगेगा, हमने पहले ही डिस्कस किया है. तो 2,50,000 का 10% विच विल बी 25,000. अभी हमको कैलकुलेट करना है इंटीग्रेटेड टैक्स के लिए वैल्यू. सो 25 लाख्स प्लस 2,50,000 प्लस 7,50,000 प्लस 25,000 will be equal to 35,25,000 which will be the value for the purpose of IGST. अब IGST में कैलकुलेट करूँगी 35,25,000 का 12% which will come to 4,23,000. अब 4,23,000 के अंदर जब मैं ऐड कर दूँगी अपनी बेसिक कस्टम ड्यूटी 2,50,000 की एंड सेफगार्ड ड्यूटी ऑफ 7,50,000 plus the social welfare surcharge of 10% which was 25,000, I will get my total liability payable of 14,48,000. And you can see हमारा आंसर मॉड्यूल के आंसर के साथ में इसी तरह मैच हो गया है. Heading to question 11. During the year 2021, the customs authorities have noticed that there is an increased quantity of product XYZ being imported into the country. Determine whether the central government should consider levying safeguard duty or anti-dumping duty with appropriate reasons. Also enumerate any exemptions or reliefs available from such duty. बेसिक सी चीज़ जो हमें सोचनी है वो ये है कि जो हमारा प्रोडक्ट है क्या वो डंप हो रहा है या इंक्रीज क्वांटिटी में हमने इंपोर्ट किया है. तो यहाँ हमने क्या किया, हमने
इंक्रीज क्वांटिटी में इंपोर्ट किया है, जिसके वजह से हो सकता है कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको नुकसान हो। सो ऐसे केस में जब इंक्रीज क्वांटिटी में हमने इंपोर्ट किया है तो एंटी डंपिंग ड्यूटी क्यों लगाएंगे, हम सेफगार्ड ड्यूटी लगाएंगे ना। और जब हम सेफगार्ड ड्यूटी ही लगा रहे हैं तो हमारी कंडीशंस कौन सी बदल रही है, वही थी जो पहले हमने डिस्कस की थी इन क्वेश्चन नंबर 3। वही सारे जो एग्जाम्शंस है वो हमको यहाँ पे पेपर में लिखने हैं। आप एक बार इसका सॉल्यूशन बाय वे ऑफ मॉड्यूल देख लेना। जस्ट वी आर गोइंग टू रीड द अपर पोर्शन, जिसके अंदर हमने डिसीजन दिया है कि हमको सेफगार्ड ड्यूटी पे करनी है। In the given case, since product XYZ is being imported into the country in increased quantity, central government should consider levying safeguard duty and not anti-dumping duty. Anti-dumping duty is imposed when any article is exported from any country to India at less than its normal value, which is not the case here. However, safeguard duty can be imposed only when central government is satisfied that such increased importation is causing threat or threatening to cause serious injury to the domestic industry. Moving to question 8, briefly examine the nature and significance of the levy of anti-dumping duty under the Customs Tariff Act 1975. So right now I have opened the PDF copy of my notes जो prepare किए थे। इसमें समरी है, इसी समरी के बेस पे हमको आंसर लिखना है, बिकॉज़ यहाँ पे हमको आंसर हिंट में इन्होंने बोला है कि आप पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ो, बट इतना तो हम एग्ज़ाम में नहीं लिख सकते ना। सो जो बेसिक पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सो first of all we have to define what is dumping. So dumping is when the normal value of like articles in exporters domestic market is greater than the export price. So if that case of dumping is happening, are we एलिजिबल टू इम्पोज एंटी डंपिंग ड्यूटी? तो इसके लिए सबसे पहले एक सवाल का जवाब देना है कि इंडियन इंडस्ट्री ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करती है क्या। अगर करती है तो हम एंटी डंपिंग ड्यूटी कंट्री स्पेसिफिकली इम्पोज कर सकते हैं, बट अगर नहीं करती तो एंटी डंपिंग ड्यूटी हम लोग नहीं लगा सकते। सो अगर कंट्री स्पेसिफिक एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज करना है तो वो क्या होगी? इट विल बी द लोअर ऑफ मार्जिन ऑफ डंपिंग एंड द इंजरी मार्जिन, वेयर द मार्जिन ऑफ डंपिंग इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल प्राइस एंड एक्सपोर्ट प्राइस, जहाँ पर नॉर्मल प्राइस कंपेरेबल प्राइस है नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रेड में। अगर डिटरमाइन नहीं कर सकते तो थर्ड कंट्री के केस में जो प्राइस होगा वो ले लेंगे, या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्रॉफिट्स ऐड कर देंगे। वहीं पर एक्सपोर्ट प्राइस जो होगा दैट विल बी द प्राइस ऑफ आर्टिकल जो कि हम एक्सपोर्टिंग कंट्री से हमको मिला है। अगर ये रिलायबल नहीं है तो इन दैट केस हम वो प्राइस लेंगे जो कि इम्पोर्टेड आर्टिकल्स को हम पहली बार किसी इंडिपेंडेंट बायर को बेचते हैं, तब उसकी प्राइस जो होती है दैट विल बी कंसिडर्ड एज द एक्सपोर्ट प्राइस। ऑन दी अदर हैंड जो इंजरी मार्जिन होगा दैट विल बी द फेयर सेलिंग प्राइस माइनस द लैंडेड वैल्यू, जबकि हमारी लैंडेड वैल्यू होगी हमारी एसेसिबल वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ कस्टम्स along with the basic customs duty, whereas the fair selling price will be the expected price of the article under the normal circumstances. Okay, अभी ये लगा कौन सकता है? तो जैसे हमने CVD के अंदर देखा था कि ऑल्ट्रेशन हो सकता है, या फिर हमने असेंबल या डिसअसेंबल्ड फॉर्म में गुड्स मंगवाए हुए हैं, तो ऐसे केस में जो वहाँ कंडीशंस थी वो भी यहीं सेटिस्फाई होनी चाहिए। एंड प्रोविजनल एंटी डंपिंग ड्यूटी अगर किसी ने पे की होगी तो उस केस में उसे रिफंड मिल जाएगा फॉर द एक्सेस कलेक्शन दैट हैज़ बीन मेड। एंड रेट्रोस्पेक्टिव इम्पोजिशन भी हम कब करेंगे? अगर जब हमको साफ नज़र आ रहा है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी हमने लगाई है, जो गुड्स है हमारे कंट्री के अंदर कंटिन्यूसली डंप हो रहे हैं, इसकी वजह से हमने ज़रूरी लग रहा है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देंगे तो इसके ऊपर थोड़ी लगाम कसी जा सकती है, तो ऐसे केस में हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव इम्पोज कर सकते हैं। एंड एग्जाम्शंस कैसे मिलेंगे? तो जैसे ही सेफगार्ड मेजर्स में हमने एग्जाम्शंस दिए थे उसी तरह से 100% EOU और SEZ को एग्जाम्शंस हम लोग दे देंगे। अलॉन्ग विद दिस ड्यूरेशन क्या होगा? तो 5 years अनलेस रिवोक्ड एंड 5 years एक्सटेंशन मिल जाएगा फॉर द पर्पज़ ऑफ रिव्यू। अगर रिव्यू कंप्लीट नहीं होता है तो 1 साल का मैक्सिमम और एक्सटेंशन मिल सकता है। यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड्स भी यहाँ मेंटेन करने होंगे। रिकॉर्ड्स किससे रिलेटेड रहेंगे? नॉर्मल वैल्यू से रिलेटेड, एक्सपोर्ट प्राइस से रिलेटेड, और जो कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा एक्सपोर्टर उसके बेसिस पर हम लोग जो भी डिसीजन है वो लेंगे कि डंपिंग हुई है या नहीं हुई है, और डिटरमाइन करेंगे कि हमारी मार्जिन ऑफ डंपिंग कितनी थी। अगर एक्सपोर्टर या फिर इंपोर्टर फेल हो जाता है डॉक्यूमेंट्स फर्निश करने के केस के लिए, तो इन दैट केस द ऑफिसर विल कंडक्ट द इंक्वायरी बेस्ड ऑन द फैक्ट्स अवेलेबल विथ हिम, और अगर एक्सेस ड्यूटी कलेक्ट हो जाती है हमारे ध्यान में आता है तो इन दैट केस रिफंड भी मिल जाएगा। सो दिस वॉज अबाउट एंटी डंपिंग ड्यूटी।
Now comes the last question, differentiate between protective duty and safeguard duty. When we discuss the difference between these two, सबसे पहला पॉइंट तो हमारा आ जाएगा इन दोनों का मतलब क्या होगा वो हमें लिखना है। प्रोटेक्टिव ड्यूटीज़ हम इसीलिए लगाते हैं ताकि हमारे इंडिजिनस इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन मिल सके, वेर एज सेफगार्ड ड्यूटीज़ हम इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें दिख रहा है कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको नुकसान हो रहा है। यहाँ पे इंटेंट का एक डिफरेंस आ जाता है। प्रोटेक्टिव ड्यूटीज़ हम लोग इंपोर्ट्स को डिस्करेज करने के लिए नहीं लगाते, वेयर एज द सेफगार्ड मेजर्स आर इंटेंडेड टू डिस्करेज द इंपोर्ट्स जो कि एक्सेस क्वांटिटीज़ में हो रहे थे। Another apparent difference is in the duration. Duration of protective duties is specifically effective up to and inclusive of date that has been given in the first schedule, whereas जो हमारा safeguard duty होता है उसका पीरियड होता है 4 years का। इस पीरियड को बढ़ाकर हम 10 years भी कर सकते हैं। And again another thing that comes to view is the part related to exemptions. सेफगार्ड मेजर्स के अंदर एग्जेम्पशंस मिल जाते हैं, वेयर एज इन द केस ऑफ प्रोटेक्टिव ड्यूटीज़ कोई एग्जेम्पशन मिलता नहीं है। सो यहाँ पर 4 पॉइंट्स कुछ ऐसे आ गए जो कि हमको डिफरेंस दिखाते हैं। हियर वी ऑफिशियली डिक्लेयर दिस चैप्टर एज कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू फाइंड दिस यूजफुल डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर गोइंग टू गिव देयर एग्जाम्स, सो दैट सभी का फ़ायदा हो जाए इस वीडियो को देखकर। एंड अगर आपको सच में अच्छा लगा देन लाइक करो और शेयर करो एंड सब्सक्राइब नोट फॉर द पर्पज़ ऑफ नोटिफिकेशंस। बेल आइकॉन भी प्रेस कर दो सो दैट यू नेवर मिस अनदर अपडेट। टिल देन, थैंक यू।